Hello and welcome, my dear students. Once again, we will have a quick review, and along with that, we will be having line by line explanation of the poem Amanda. So, shall we begin? Are you all ready with it? Huh? Up till now, we have got sufficient understanding of Amanda. She is a girl, she is a child, and she is frustrated by the nagging of her parents, especially her mother. And let us see what now happens to her, although you have all known it and you must have read the lesson also, read the poem also. Please do complete the notes also in the notebook. Yeah, make it a point after the end of explanation of every lesson. You are supposed to write the notes. Okay, you have to do the exercises which are after each lesson. So here it is line by line explanation of Amanda from a CBSE teacher. And one more thing shall I remind in between, the forthcoming test in scheduled to in the month of August will be an MCQ test, and we will be providing a few mock tests for you before that. Sample testing. How the tests will be coming for all the subjects, obviously. But particularly, I'll tell you about English. Here, what we do is, first of all, we will be having unseen passages, and the answers, as you know, will be MCQs, means uh, alternative questions will be there. है ना? You have to choose the best appropriate answer. हो सकता है सारे आंसर सही हों, उनमें से सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा जो आंसर है वो आपको चुनना है ना? You have to choose बेस्ट वन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. सबसे अच्छा आंसर कौन सा है ना जी? उससे मिलता जुलता आंसर भी होगा. बड़े कंफ्यूजन होते हैं ऐसे आंसर में, एमसीक्यूज में. हेलो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उससे मिलते जुलते आंसर भी होते हैं. आपको बिल्कुल बेस्ट आंसर, बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर चुनना है एमसीक्यू में. और हम तुम्हें कुछ सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स देंगे अभी इंग्लिश में भी. सो 5 नंबर का एमसीक्यू होगा अनसीन पैसेज का, उसके बाद 10 नंबर का प्रपोजिशन का, और बचे हुए 5 नंबर का हमारे मेन कोर्स बुक का. ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट का जो लेसन हमने कराए हैं ना, उनसे रिलेटेड. सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड. We will be giving you several question papers for practice, and we will be providing you with model question papers, sample question papers, practice question papers. Please solve them. Please go through whatever has been taught to you since March onwards. अभी से लेके मार्च तक जो भी पढ़ाया है वो सभी आपको अपने मन में रखना है, ध्यान में रखना है, उसी से आगे बढ़ना है. तो दिस towards the end of our syllabus, we end up with line by line explanation of Amanda, the poem English teacher. Today let's look at the line by line explanation of the poem Amanda from class 10 English. If you're watching my video for the first time, please subscribe. You can listen to the explanations of chapters from classes 10, 11 and 12 English. And don't forget to press the bell icon so that you get notified whenever I upload a video. Let's move on to the poem now. Amanda is written by an Australian author named Robin McLaughlin, who writes for children. She has also won many awards. Let's look at the theme of the poem. The theme mainly focuses on the upbringing of a child, and it also focuses on the struggles a child is facing while growing up.
And the poet wants to make one point very clear, that is, children should not be deprived of their freedom. Most of the time, parents keep on talking to them and do not let them do their things in their own way. Some children do not like this and they want to be let free. So, let us see how the parents should help the children to grow up in a proper way and how the parents should also be responsible. So let's move on to the poem now. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. So here it's about a child called Amanda who might be 13 or 14 years old. So the girl is always being ordered by her parents. So somebody is telling her, don't bite your nails, Amanda. So this girl was sitting and doing her work, and the parent is ordering her not to bite her nails. Don't hunch your shoulders, Amanda. What is hunching the shoulders? To bend and sit, not sitting in a straight manner. So that also the parent does not like, and the parent is ordering her to sit straight. Stop that slouching and sit up straight. What is slouching? To sit in a lazy manner. So she is also just sitting very lazily and not sitting straight. So the parent does not like this, and the parent is constantly ordering her to do this and do this and don't do that, etc. So what is the parent telling? Not to bite her nails, not to hunch her shoulders, and not to slouch. And the parent wants the child to sit straight and do her work. Now the second stanza is in parenthesis. That means this part the child is imagining. It's all in her mind. It's not part of somebody speaking. Okay. So there is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. So there is a languid emerald sea. What is languid? Languid means peaceful, calm. Emerald sea means green color sea, ocean. So the ocean is green color and it is looking very peaceful and relaxed and calm. Where the sole inhabitant is me. Sole inhabitant means lonely. Inhabitant means resident, somebody who's staying, is me. So me here is Amanda. So a mermaid drifting blissfully. Mermaid, it's half fish and half woman. So drifting blissfully means floating by. Blissfully means in a very happy manner. So Amanda does not want to be disturbed at all. So she's imagining that she is alone in a peaceful sea, and she has taken the form of a mermaid and she's floating about happily without anybody disturbing her. So this is a thought that is running in her mind. So she wants to be left alone without any disturbance. So you can look at the meanings of the words. Hunch means to bend, slouching means sitting in a lazy manner, languid means relaxed or calm, emerald here is a green color, inhabitant, resident, drifting means carried slowly by water, that is floating, blissfully means happily. Let's look at the next answer. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. So again the parent is coming here and giving her a lot of commands. So what is that? First the parent is asking, did you finish your homework? And then she is asking, did you tidy your room? And then I told you to clean your shoes. Did you do it? So she has given her a lot of work, and then she is asking her whether you finish your homework, did you clean the room, and did you clean your shoes, etc. So let's move on to the next stanza. Again, the next stanza is in parenthesis. That means these are the thoughts running in Amanda's mind. I'm an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Again, she's talking about being an orphan. She's thinking that who is an orphan? Someone who does not have parents. So she's thinking that she's an orphan. She's roaming about in the streets freely. And then what is she doing while walking? She's making patterns with the soft dust. And how is her feet? Her feet is bare. That means she's not wearing any shoes, and it is hushed. At the same time, not making any noise at all. As she is walking, she's making patterns of soft dust. Okay. And then she's feeling that the silence is golden. She always wants to be left alone. She does not want to be nagged about like this. And she also is saying that freedom is really sweet because she wants to be free. She doesn't want anybody to come and disturb her.
So some difficult words. Orphan means a child whose parents are not alive. Hushed means quiet. So let's look at the next stanza. Don't eat the chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? So again, the parent is ordering her not to eat chocolates. Remember your acne, Amanda. What is acne? Acne means pimples. So the parent says that if you eat chocolates, you will get more acne on your face. So don't eat chocolates. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? So the child was doing the work, the parent is trying to speak to her, and the child is not bothered that the parent is speaking. And so the parent is angry and wants her to look at the parent while she is talking. So let's move on to the next stanza. Again, the next stanza is in parenthesis. That means these are the thoughts of Amanda. I am Rapunzel. I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I certainly never let down my bright hair. So what is she imagining now? Amanda is imagining herself to be Rapunzel. Who is Rapunzel? Rapunzel is actually a character in a fairy tale, and she was kidnapped by a witch and kept inside a castle. So that's why she's saying that now I am Rapunzel. I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. So Rapunzel had to live in a tower all by herself along with the witch. So now here Amanda is thinking that she is also she's also Rapunzel, and she's saying I don't care and I like to live in a tower because the life there is tranquil and rare. Tranquil means very peaceful, and rare because everybody does not get the chance to live in a tower. So she's saying I'm Rapunzel now and I like to live inside a tower. I'll certainly never let down my bright hair. Rapunzel had a long bright hair, golden color hair. She used to put down her hair through the window so that the witch can climb up and down. So now here she's saying that I'm Rapunzel, but I will not put down my hair for anybody to climb up and down. So let's look at the difficult words in this stanza. Acne means pimple. Rapunzel means a girl in the fairy tale. Tranquil means calm and peaceful. Rare is uncommon. So let's move on to the next stanza. Stop that sulking at once, Amanda. You're too moody. You're always so moody, Amanda. Anyone would think I nagged at you, Amanda. So again, the parent is talking to her. What is the parent telling? Stop that sulking at once. Sulking means being in a bad mood. You're always so moody. That means you are not at all happy. You don't show any happiness at all. You always keep changing your mood. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. So the parent is worried that she's so moody and sulking because of the parent. Nagging means keep on asking a lot of questions, irritating questions. So the parent is feeling that the child has become moody and sulking because of the parents' nagging questions. So she's asking her to stop sulking and stop being so moody. And she's also saying that people will think that it is because of the parent that the child is behaving in such a manner. So let's look at the difficult words. Sulking means to be in a bad mood. Moody means unstable status of the mind. Nagging means harassing. That means asking a lot of questions, irritating. ये लिया गुलाम। बादशाह को तो सब भूल गए हैं, तीसरे बादशाह तो। हेलो एंड वेलकम टू द एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी पोएम। एंड बेसिकली एक ऑस्ट्रेलियन पोएटेस है, एंड उनकी जितनी भी आज तक वर्क्स है या जितने भी उन्होंने ऑथर राइटिंग कुछ भी करी है, ये बच्चों से रिलेटेड है। सो चिल्ड्रन बुक्स जो बेसिकली उन्होंने लिखी है। एंड ये जो पोएम है अमांडा, बेसिकली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है, एंड इस मैसेज को आप भी रिलेट करोगे एंड एवरीबडी कैन रिलेट। सो ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वो हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम कोई सोशल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें, एंड स्पेशली अगर हम गर्ल्स हैं तो, कि आपको इस तरीके से बैठना है, इस तरीके से उठना है, ज़्यादा ज़ोर से अब बात नहीं करनी, ज़्यादा किसी के साथ हंसना नहीं है, एंड ये सारी चीज़ों को हम स्पेसिफिकली देख सकते हैं। ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, ये जो सोसाइटी है, ये एक्सपेक्ट करती है कि हम इस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें। सो इस पोएम में उन्होंने यही मैसेज दिया है। यहाँ पे ये जो लड़की है अमांडा, बेसिकली बहुत परेशान है बिकॉज इसकी जो मदर है
वो उनको बार बार याद दिलाती रहती हैं उनकी मिस्टेक्स को, जो कि शायद उसे लगता है कि ये मेरी मिस्टेक्स है भी नहीं, ये मेरा नॉर्मल नेचर है। को उसको कहती रहती हैं कि अमांडा तुम ऐसे मत बैठो, ऐसे मत बात करो, कंधे झुका के मत बैठो। इस तरीके से जो उसकी मदर है उसको पिन पॉइंट करती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं उसे लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड हूँ, मेरा जो बिहेवियर है उसको काफ़ी ज़्यादा मॉनिटर करा जा रहा है हमेशा, एंड उसे ऐसा बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, क्योंकि वो रहना चाहती है एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे फ्रीडम हो, जहाँ पे इन सब चीज़ों से दूर उसको किसी चीज़ की टेंशन ना लेनी हो, एंड जैसी वो है वो अपने आप को पोर्ट्रे कर सके। सो यही बता रही है इस छोटी सी पोएम में। चलिए देख लेते हैं इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, don't hunch your shoulders Amanda, stop that slouching and sit up straight Amanda। so first जो आपकी ये 4 लाइन्स है उनमें आपको क्या समझ आ रहा है? एक मदर है जो अपनी बेटी को बोल रही है कि तुम अपने नील्स मत खाओ अमांडा, तुम अपनी शोल्डर्स को हंच मत करो। अच्छा, पहले यहाँ पे थोड़े इंपॉर्टेंट जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसके मीनिंग देख लेते हैं। सो फर्स्ट है हंच। हंच मतलब बेंड करना, शोल्डर्स को बेंड करके बैठना, ठीक है। सो वो यही बोलती है। एंड स्लाउचिंग का मतलब क्या होता है कि आप बहुत रिलैक्स, बहुत ही लेजी वे में बैठे हो। तो वो कहते हैं कि तुम ऐसे मत बैठो, इतने लेजी वे में मत बैठो, तुम एक लड़की हो, तुम्हें अच्छे एक्टिव तरीके से बैठना चाहिए। सो वो अमांडा को कहती हैं। अब ये जो ब्रैकेट्स में है आप देखेंगे हर स्टैंजा के ऑलमोस्ट एंडिंग में आप देखोगे ब्रैकेट में 2-3 लाइंस हैं। अब ये जो 2-3 लाइंस हैं ये एक्चुअल वर्ल्ड है। जब उसकी मदर उनको ये सब चीज़ें बोल रही होती हैं तो वो अपने दिमाग में सोचती है मैं इस तरीके के वर्ल्ड में हूँ, वो ऐसी फीलिंग आती है उसको कि मैं तो बहुत आज़ाद हूँ एंड मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी है, मेरा अलग ही वर्ल्ड है। तो ये जो उसका वर्ल्ड जो वो सोचती है दिमाग में वो है। सो इसमें लिखा है देयर इज अ लैंग्वेड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। सो वो यहाँ पे कहती है कि एक्चुअली वो कहाँ पे है अभी, उसका बॉडी तो यहाँ पे है लेकिन उसका माइंड कहीं और पे है। एंड वो ये कहती है कि मैं बेसिकली, सो लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, बहुत ही रिलैक्स। सो कहती है कहीं दूर बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स जगह पे जहाँ पे एमरल्ड सी हो। सो जो सी का कलर है बेसिकली वो बताती है इस तरीके से है, ग्रीनिश सा है एंड वो वहाँ पे है कहीं, एंड वहाँ पे सिर्फ एक इंसान रहता है। सिंगल इनहेबिटेंट मतलब जो वहाँ का ड्वेलर हो, जो वहाँ रहता हो। तो वो कहती है उस जगह पे सिर्फ एक ही इंसान रहता है एंड वो मैं हूँ जो ड्रिफ्ट कर रही है ब्लिसफुली। ब्लिसफुली मतलब हैप्पीली। तो वो कहती है ड्रिफ्टिंग मतलब कैरिड स्लोली बाय वाटर। तो वो मे भी आप कह सकते हैं यहाँ पे अपने आप को एक मरमेड की तरह बेसिकली इमेजिन करिए कि वो एक मरमेड है एंड एक सी में है जो उसका घर है एंड वहीं पे वो ब्लिसफुली ड्रिफ्ट कर रही है विद वाटर। सो एक तरफ तो आप देख सकते हैं वो वर्ल्ड है जो उसको कहता है कि आपको ये पर्टिकुलर नॉर्म्स फॉलो करने हैं, आप एक लड़की हो, आपको ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, ऐसे काम करना है। एंड दूसरी तरफ इस लड़की का अपना वर्ल्ड है जहाँ पे वो अपने आप को इतना फ्री मानती है, जहाँ पे वो अपने आप को इतना ब्यूटीफुल सोचती है, डिस्क्राइब करती है इन द वे जैसी वो है। नेक्स्ट वो कहती है यहाँ पे Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. And then, I'm an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. So firstly, जो उनकी मदर है अगेन उनको बोल रही है कि तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया है अभी तक या नहीं किया है। एंड वो कहती है कि तुमने अपना रूम साफ किया है कि नहीं किया है। एंड मुझे लगता है कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि तुम्हें अपने शूज साफ करने थे। सो बेसिकली उसकी जो मदर है उसको बार बार नैग करती रहती है, मतलब बार बार बोलती रहती है कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, बार बार उससे कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं। एंड अमाना अपने ही वर्ल्ड में होती है एंड यहाँ पे वो कह रही है कि आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। सो बेसिकली वो कहती है कि मैं यहाँ पे तो मुझे मेरी मदर है जो मुझे गाइड करेगी, लेकिन जिस वर्ल्ड में मैं हूँ, जिस वर्ल्ड में मैं रहना चाहती हूँ, जितनी फ्रीली मैं रहना चाहती हूँ, वहाँ मैं एक ऑर्फन हूँ, मेरे पेरेंट्स नहीं है एंड मैं फ्रीली स्ट्रीट्स में रोम कर रही हूँ, घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट। अब मतलब कि वो अपने आप को इमेजिन कर रही है कि किस तरीके से सॉफ्ट डस्ट से वो बेसिकली पैटर्न्स बना रही है सैंड में एंड किस तरीके से वहाँ पे वो अपनी बेयर फीट, बेयर मतलब कि नेकेड, उसने कोई स्लिपर्स नहीं पहन रखी या कोई शूज़ नहीं पहन रखे
एंड इसलिए वो उसमें खेल रही है एंड शी इज हैविंग फन. सो यहाँ पे इसने बेयर फीट क्यों यूज किया, बिकॉज अभी उसकी जो मदर थी उन्होंने उसे डांटा, कहा था कि मैंने तो तुम्हें अभी कहा था कि अभी तुम्हें शूज पॉलिश करने, अपने शूज क्लीन करने हैं. तो ये कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए कहा है कि जो उसकी मदर उसको बेसिकली कहती है वो उसको नहीं करना. इस तरीके के सोसाइटी के नॉर्म्स उसको फॉलो नहीं करने, उसको फ्री रहना है और उसको इस तरीके से फ्री रहना है जहाँ पे उसको कोई रोकने टोकने वाला ना हो. जो वो चाहे, जैसे वो चाहे, चाहे उसको रोम करना है स्ट्रीट में, चाहे अपने पैरों को गंदा करना हो, चाहे खेलना हो, चाहे एक मोमेंट की तरह सी के पास रहना हो, ये सारी चीज़ें उसको करनी है, लेकिन उसको कैद होकर नहीं रहना. इनफैक्ट यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है उन्होंने यहाँ पे, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट. द साइलेंस इज गोल्डन क्यों? जैसे मैंने आपको बताया, उनकी मदर उसको हमेशा नैग करती रहती है, ये करो वो करो, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, नैग करती रहती है. तो एक साइलेंस जो उसको एक्सपीरियंस करनी है कि कोई उसके आसपास ना बोले, शांति हो, ये साइलेंस उसको एक्सपीरियंस करनी है. एंड ये उसके लिए गोल्डन है, ये उसके लिए प्रेशियस है. एंड ये जो फ्रीडम है जो उसने कभी टेस्ट ही नहीं करा आज तक, वो सोचती है कि जहाँ मैं रहूँगी ये बहुत स्वीट होगा. सो यही दिखाता है कि वो कितना ज़्यादा अपने इस वर्ल्ड में बिलीव करती है एंड कितना खुश रहना चाहती है इस वर्ल्ड में. नेक्स्ट आती है यहाँ पे लाइन, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्सेंट अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, आई एम Rapunzel, I have not a care, life in a tower is tranquil and rare, I'll certainly never let down my bright hair. So बहुत ही ब्यूटीफुल इन्होंने यहाँ पे भी डिस्क्राइब किया है कि जैसे कि आप कहते हैं ना कि एक पर्टिकुलर, जैसे मैंने आपको बताया कि एक सोसाइटी गर्ल से कुछ तरह का कोड ऑफ कंडक्ट हमेशा एक्सपेक्ट करती है कि ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, चॉकलेट नहीं खाना, मुंह पे पिंपल हो जाएगा. एक्सेंट बेसिकली पिंपल, कि पिंपल हो जाएगा मुंह पे. एंड ये जो एज है जिसमें अमांडा भी है, बेसिकली शी इज मे बी इन हर प्यूबर्टी, एंड इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हैं. बेसिकली टीनेजर्स, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं अपनी लुक्स को लेकर, एंड मिरर उनका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है उस टाइम पे. एंड इसीलिए एक ये सब इसीलिए होती है सारी चीज़ें क्योंकि हमें हमेशा परफेक्ट दिखना होता है. एंड इसीलिए सब हमारे आसपास हमें याद दिलाते रहते हैं, तुम्हें परफेक्ट दिखना है तो तुम चॉकलेट मत खाओ, तुम लेज मत खाओ. सो ये सारी चीज़ें आसपास के लोग जो हमें याद दिलाते रहते हैं. एंड सिमिलरली जो उसकी मदर है वो भी उसे ये कहती है कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, एंड तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारा पिंपल हो गया था खाकर. सो वही ये बोलती हैं. एंड वो कहती है कि अगर मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम मेरी तरफ एटलीस्ट देखोगी. तो यही बात जो है उसको अच्छी नहीं लगती. एंड देन वो अपने बारे में अगेन अपने जेन में, अपने जोन में चली जाती है. एंड फिर बोलती है कि मैं तो रपंजल हूँ. आपने अगर रपंजल की स्टोरी सुनी होगी, दैट शी हैड बहुत ही ब्यूटीफुल लॉन्ग गोल्डन हेयर थे उसके. एंड जब भी वो अपने हेयर लेट डाउन करती थी, शी लेट डाउन फॉर हर मदर, वो उसके हेयर पकड़ के ऊपर आती थी जिस टावर में वो रहती थी. सो ये काफ़ी लॉन्ग स्टोरी है, ये आपके जानने के लिए ज़रूरत नहीं है. बट यहाँ पे वो अपने आप को उस फेरी टेल का कैरेक्टर इमेजिन करते हैं कि मैं तो रपंजल की तरह हूँ एंड मैं तो उस टावर में रहती हूँ जो एकदम शांति है, जहाँ के आसपास सिर्फ ब्यूटीफुल सीनरी है, जहाँ पे कोई भी नहीं है. एंड देन वो यहाँ पे बोलती है लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर. तो ट्रैंक्विल का मतलब काम एंड क्वाइट, एंड रेयर मतलब अनकॉमन, मतलब कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रैंक्विलिटी की मोमेंट होगी, मेरे लिए काफ़ी रेयर होगा ये, क्योंकि मेरे घर में हमेशा शोर होता रहता है, मेरी मदर हमेशा मुझे नैग करती रहती है, आसपास के लोग भी इतना बोलते रहते हैं. सो टावर में रहना कितना ज़्यादा पीसफुल होगा, कितना काम होगा, जहाँ पे आसपास सिर्फ ब्यूटीफुल सीनरी होगी देखने को. सो वो यही बोलती है दैट I'll certainly never let down my bright hair. So वो अगर आपने रपंजल की मूवी देखी है, टैंगल बेसिकली एक मूवी है, अगर आपने देखी होगी तो उससे आप रिलेट कर सकते हो कि ये फेरी टेल ही थी बेसिकली एक तरीके से, कि वो कैसे अपने हेयर को लेट डाउन करती थी एंड फिर जो भी आता था उसके हेयर को क्लाइंब अप करके ऊपर आता था, उससे एक तरह से रस्सी बना के. सो इतने स्ट्रॉन्ग एंड इतने लॉन्ग हेयर होते थे. तो वो कहते कि मैं तो कभी अपने जो हेयर है उसको कभी भी लेट डाउन नहीं करूँगी जिससे कोई ऊपर आए. मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है, मुझे शांति बहुत पसंद है, मुझे फ्रीडम बहुत पसंद है. सो यही वो कहती है इसमें. एंड देन लास्ट इज दैट स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, anyone would think that I nagged at you Amanda. So basically अब यहाँ पे जो लास्ट आपका स्टैंजा है काफ़ी
ज्यादा आयरनी है यहाँ पे। अब आयरनी कैसी है कि अब एक तो आप उस बच्चे को इतना नैग कर रहे हो, इतना परेशान कर रहे हो कि ऐसे मत करो, वैसे करो, हाँ, एंड देन जैसे ही उस बच्चे को बुरा लगेगा, ऑफ कोर्स ही इज सल्किंग, ही और शी इज सल्किंग मतलब क्राइंग, धीरे धीरे से रोना, ठीक है। अब वो अपने इमोशंस भी ना दिखाए, एंड अगर वो अपने इमोशंस दिखा रहा है तो आप उसको कह रहे हो कि ऐसे मत करो, वरना कोई भी सोचेगा कि मैं तुम पे चीखी हूँ या मैंने तुम्हें तंग किया है, विच इज ऑब्वियसली जो उन्होंने किया, आप उसे तंग किया है, आप उसको नैग कर रहे हो, तभी वो इस तरीके से बिहेव कर रही है। सो यही आयरनी है, यही इस लास्ट स्टैंजा में भी वो कहती है कि तुम, वो इनफैक्ट अमांडा को कहते हैं कि अमांडा तुम बहुत मूडी हो, एंड इनफैक्ट वो इतनी मूडी होती है। सो बेसिकली ये जो ऐसा नहीं है कि इस पोएम के थ्रू उन्होंने ये बताया है कि हमारी जो मदर्स हैं वो बहुत परेशान करती हैं, ये मैसेज नहीं है। इसका मैसेज ये है कि किस तरीके से सोसाइटी जो है हमसे एक स्पेसिफिकली गर्ल्स से एक कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो एक्सपेक्ट करती है, एंड उसको इन्फोर्स करना जो है थ्रू देयर मदर्स करवाती है, एंड दैट इज वाई जो उनकी मदर है उसको हमेशा आप कह सकते हैं मॉनिटर करती रहती है कि ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ऐसे बात करो, कोई तुमसे बात करे, ऐसे देखो, पिंपल हो जाएगा, चॉकलेट मत खाओ। सो ये सारी चीज़ें जो है थ्रू हर मदर बेसिकली ये उस पर इन्फोर्स करी जाती हैं, एंड ये उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता, बिकॉज ये तो एक छोटी सी बच्ची है, अभी इतनी भी बड़ी नहीं हुई है, एंड इसको फ्रीडम चाहिए। आप सोचो अगर इतनी छोटी सी बच्ची फ्रीडम की बात करी है, अकेले रहने की बात करी है, तो मतलब वो कितनी ही परेशान होगी अपने आसपास के एनवायरनमेंट से। सो यही कहते हैं जो पोएट है इस पोएम में। सो ये तो हमने देखी इसकी लाइन बाय लाइन समरी, जहाँ मैंने आपको इसका मतलब बताया। जो ब्रैकेट्स में है दैट इज द वर्ल्ड जहाँ पे या जिस तरह का वर्ल्ड में ये लड़की रहना चाहती है, जिसका नाम अमांडा है, एंड ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो इसी तरीके से रहना चाहती हैं, हमेशा एक तरह की आप कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस में नहीं रहना चाहती, एंड दूसरी तरफ वो वर्ल्ड है जहाँ उसको एक पर्टिकुलर वे में रहना है, एंड वो इन्फोर्स किया जा रहा है थ्रू हर मदर जो उसको हमेशा नैग करती रहती है। सो अब हम देख लेते हैं इस पोएम में जो इम्पोर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस जो है दैट आर यूज्ड वो देख लेते हैं, एंड फिर देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेट्स हैव अ लुक एट देम। सो ये कुछ पोएटिक डिवाइसेस हैं जो आपकी इस पोएम में यूज करे गए हैं। फर्स्ट एनाफोरा, जैसे कि इसका मतलब पहले भी बताया था हमने, रिपीटेड यूज ऑफ जो हम कहते हैं वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर लाइन्स, जैसे कि हम देखते हैं डिड यू फिनिश योर वर्क या डिड यू क्लीन योर शूज। सो इस तरीके से जो डिड यू करके जो आप कहते हैं रिपीटेड आ रहे हैं वर्ड्स, सो दैट इज व्हाट एनाफोरा इज, जो आपकी इस पोएम में यूज किया गया है, राइट। नेक्स्ट आती है आपकी रेपिटेशन हम देखते हैं इसमें काफी ज्यादा है, जैसे कि यूज ऑफ वर्ड अमांडा हम देखते हैं बहुत बारी बोलती रहती है, हर एक सेंटेंस के आगे वो यूज करती है अमांडा, तुमने ये काम किया अमांडा, तुमने वो काम किया अमांडा, राइट। सो हम देखते हैं, राइट। सो वही है रेपिटेशन, बार बार उन्होंने उसको यूज किया है। एंड मेटाफर उन्होंने यहाँ पे, जब आपने देखा कि द साइलेंस इज गोल्डन, जब वो अपने आप को बेसिकली रपुंज़ल आप कह सकते हैं मानती है। सो रपुंज़ल जैसे मैंने आपको बताया शी हैड गोल्डन लॉन्ग हेयर, तो ये एक मेटाफर है। सो एक तरह से गोल्डन को उन्होंने मेटाफर यूज किया है कि फर्स्टली तो ये जो साइलेंस है वो इतनी ज़्यादा अच्छी होगी, बिल्कुल गोल्ड की तरह होगी, प्रेशियस। एंड दूसरी तरीके से हम देख सकते हैं कि वो यहाँ पे बात कर रही है ऑफ हर हेयर, कि किस तरीके से वो अपने आप को इमेजिन कर रही है, वो रपुंज़ल है, उसके हेयर ऐसे हैं, एंड इसीलिए उसको मेटाफोरिकली यहाँ पे यूज किया गया है। एंड देन यहाँ पे एल्यूजन का रोल या बेसिकली एल्यूजन को यूज किया गया है, जैसे हम देखते हैं कि किसी फेमस स्टोरी, जैसे कि फेमस फेरी टेल आप कह सकते हैं रपुंज़ल की, उसको उन्होंने यहाँ पे शो किया है। ये आपकी राइम स्कीम है। स्टैंजा 1 में है AABACCC, सेकेंड स्टैंजा में है AADAEEE, एंड थर्ड में है AAFAGGG, एंड फोर्थ में है AAHA। तो ये राइम स्कीम है, ये आपके पोएटिक डिवाइसेस हैं जो यूज हुए हैं इन दिस पोएम। सो अब देख लेते हैं लास्ट में कि इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। सो इससे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखें। वन थिंग दैट हैव टू टेल यू वो ये है दैट, जैसे मैंने आपको बताया था कि अमांडा का रिएक्शन होता है, अमांडा क्या सोचती है जब उसकी मदर उनको ये सब चीजें बोल रही होती है, वो जो उन्होंने बेसिकली ब्रैकेट में लिखा है दैट इज हेल्पफुल फॉर अस, जो हमारे समझने के लिए है, जो पूरा चीज़ ताकि हम पूरा सीन समझ आए, उसको हम कहते हैं पेरेंथीसिस। सो बेसिकली इससे हमें समझ आ रहा है कि ये रिएक्शन क्या है। सो जितने भी हम ब्रैकेट्स में देखते हैं ये सारे अमांडा के ही आप कह सकते हैं रिएक्शंस हैं या उसकी थिंकिंग है, राइट। सो अब क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं फर्स्टली कि आपको क्या लगता है कि ये जो
इसमें हम पढ़ते हैं जो हमने इस पोएम में देखी है ये कौन बोल रहा है. सो वी ऑलरेडी नो दैट ये अमांडा ही बोल रही है इन सब चीज़ों को. एंड क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं कि व्हाट वुड अमांडा डू अगर वो एक मर्मेड होती. तो आपके पास ऑलरेडी रिप्लाई है कि वो बहुत ज़्यादा खुश रहती बिकॉज वो सिंगल इनहेबिटेंट होती उस एमरल्ड सी की. एंड उसको बहुत मज़ा आता अपने बेयर फुट से सैंड में खेलने के लिए या उससे डिफरेंट शेप्स बनाने के लिए एंड शांति में रहने के लिए उसको बहुत अच्छा लगता. सो अब जो लास्ट क्वेश्चन इसमें से आ सकता है वो थीम बेस्ड या आप कह सकते हैं वैल्यू बेस्ड होगा कि बेसिकली जो उसकी मदर थी उसको जिस तरीके से नैग करती थी क्या वो ठीक था या जो अमांडा सोचती थी वो ठीक था. तो आपको इस पे अपना व्यू पॉइंट देना होगा. तो आप इसको जस्टिफाई करोगे कि एक तरह से अगर हम उस मदर को देखेंगे तो उसमें उनकी गलती भी नहीं है बिकॉज उनको भी पता है कि ये जो सोसाइटी है एक पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो एक्सपेक्ट करती है फ्रॉम गर्ल्स कि उनको यही फॉलो करना है. इसीलिए वो हमेशा अपनी बेटी को मॉनिटर करती रहती है ये करो वो करो. बट ऑन दी अदर हैंड कि वो उसकी मदर है तो उसको समझना चाहिए कि ये एक बच्ची ही है. एंड जैसे सब बच्चों को फ्री रहना अच्छा लगता है जिस तरीके से बैठे कैसे भी खेले तो अमांडा को भी यही अच्छा लगता है. एंड दैट इज वाई आप कह सकते हैं कि वो अपने इस वर्ल्ड को इमेजिन करती थी जहाँ वो फ्री थी. एंड ये जो वर्ड वो यहाँ पे यूज़ करती है कि आई एम ऑर्फन देयर तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्चुअली में चाहती है कि शी बिकम्स ऑर्फन. ये वो इसीलिए यूज़ करती है क्योंकि उसको हमेशा ऐसा लगता है कि उसके जो पेरेंट्स है उसकी जो मदर है उसे हमेशा कंट्रोल करती रहती है. तो उसको ये फ्रीडम चाहिए क्योंकि ये जो जितने भी नॉर्म्स होते हैं ये जो सोशल कंडक्ट्स होते हैं ये रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं. तो इंसान की इंडिविजुअलिटी चली जाती है. सबको एक तरीके से अगर बिहेव करना होगा तो ये जो पॉइंट है आप इसमें जस्टिफाई करोगे. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो कीप प्रैक्टिसिंग कीप लर्निंग.